आज का जो तीसरा और लास्ट टॉपिक है वो था द रिवर्जन ऑफ एंड्रू टेट. एंड्रू टेट का पहला वीडियो आपने सही शुरू में बताया था कि द वन आई सॉ एज वेल was where he was saying that as a Christian at that time, he was a Christian, he was from Romania, MMA fighter, kickboxer from Nottingham. So he was controversial because he was part of the MAGDAO movement, जिसको men going their own way कहते हैं. तो वो movement ये है कि basically वो एक feminist movement के counter करने के लिए एक मूवमेंट है, रेड पिल जिसको भी कहते हैं. तो ये मूवमेंट जो थी ना, ये काइंड ऑफ हुआ ये कि एक तो फेमिनिस्ट नैरेटिव था, वो तो एक था. दूसरा जो नैरेटिव क्रिएट हुआ वो ये हुआ कि वुमेन आर नथिंग एंड दे आर योर प्रॉपर्टी एंड यू शुड जस्ट abuse and do what you want. Do what you want with them and use and abuse them and all that because you are the man, you are the macho guy, you are the this that. तो वो एक और तरफ चीज़ जा रही थी. But having said that, हर बंदा एक learning curve से गुजरता है. So he said something in a video where he said that if I was to bet on any religion that would dominate the world or would जिसकी ideology solid है, concrete है, he said I would put my money on Islam. As a Christian, he said I would, because उसने जो reason दिया, जो अली भाई ने identify किया था, वो ये था कि he said कि because Muslims के जो values है ना, वो उस पे compromise नहीं करते. He said we Christians will fall for anything. हमें कोई अगर literally तो कहा था कि किसी street पे कोई बंदे ने t-shirt पहनी हुई जिस पे लिखा होगा Jesus is gay, नाउज़ बिल्लाह सुमा नाउज़ बिल्लाह, तो Christians will not say anything to it. But a Muslim, you cannot say this to a Muslim because they will be very serious about it. You cannot even walk with that shirt for much longer, perhaps. तो जिस तरह वो यानी तो बेसिकली वो इस चीज़ को लेके चला, तो वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ. उसके बाद लोगों ने पता किया and all that. Now in the middle he made some controversial points in statement, but the good thing is alhamdulillah he finally came towards Islam and he became Muslim. Alhamdulillah, we wish him all the best and we hope and pray that things will work out. अभी जिस तरह आपसे पहले बात हो रही थी कि मोहम्मद इजाब did a podcast with him जिसमें he did से कि जो पिछली उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स किए खासतौर पे ख़वातीन के बारे में, he took those back. अगर आप exactly उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें. असल में जो स्टेटमेंट्स थी उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसने बल्कि जो क्लैरिफिकेशन दी है, उसने कहा कि मेरी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया. वैसे तो ये आपने देखा ही है कि जब से उसने ये चीज़ें कहना शुरू की हैं और जब से वो इस्लाम के करीब आया और एक सपोर्ट सी फील हुई है, पूरी दुनिया जैसे उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई है और यू नो उसे डिफरेंट प्रोग्राम्स में बुलाया जा रहा है. या सो उसकी बेसिकली ये सब चीज़ें हो रही थी. तो ही सेड कि मेरी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब लिया गया तो मैंने ये कहा था कि मैन आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन. आई डिड नॉट से कि विमेन जो हैं वो मैन की प्रॉपर्टी होती है. ये प्रॉपर्टी का वर्ड जो है मेरे साथ ऐड किया गया है. तो जब एक फादर जो है वो आके अपनी बेटी का हाथ एक मर्द के हाथ में देता है, उसके हस्बैंड के हाथ में, तो उसका मतलब होता है कि नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरटेकर. या इट्स नॉट योर प्रॉपर्टी. सो या he also said something very interesting really quickly, because when hijab said you are an icon for hedonism, like you are an icon for freedom, you know, do what you want. But he goes, how can that be? I'm a professional. He's actually a champion MMA boxer. He's won you know, championships. When you're in this field, you have to not smoke. You can't do this. You can't drink. You can't do this. So how am I an icon? He says, how was before Islam? How so? Aapke baad they made it out to be the real. This guy does this. He's drinking. He's an alcoholic and this kind of thing. Yeah. But he's saying, I can't. I'm a boxer. So you are governed by I've been some training rules. from the age of, you know, subhanallah. You're not free. जब आप even आप You can't. competitive athletics में जब आप होते हो किसी भी Smoking नहीं कर सकते, तो आपको अपने आप को बहुत डिसिप्लिन करना पड़ता है. हमारे यानी उस तरह नहीं आप कर सकते कि जो मर्जी खाओ, Sleep on time, sleeping pattern. otherwise you won't be the best. फुटबॉल प्लेयर्स हैं, इनको क्रिकेट देख के ना मुझे वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का वो याद आता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, कि उन्होंने भी इमोशंस में आके एक बात वैसे ही कह दी थी अबू जहल को, ठीक है, और अल्लाह ताला को वो बात इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने उनका दिल बदल दिया एंड देन ही एक्सेप्टेड इस्लाम. मे बी जो उसने उस पॉडकास्ट पे आउट ऑफ नोवेयर वो बातें चंद कर दी, मे बी अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक दोस सो मच कि अल्लाह ताला ने उस बंदे का दिल बदल दिया. अच्छा, मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करूंगा. एक सिस्टर हैं, उनका एक ट्वीट था, बड़ा वायरल भी हुआ. मैं उनका नाम नहीं ले रहा बिकॉज एवरीबडी डिजर्व्स रिस्पेक्ट, बट उन्होंने ये लिखा था कि इफ एंड्रू टेट ट्राइज टू बिकम मुस्लिम, दिस इज बिफोर ही बिकेम मुस्लिम, शी सेज इफ एंड्रू टेट ट्राइज टू बिकम मुस्लिम और parades himself around as Muslims and gets accepted, I am leaving Islam. Wallahi, I'll abandon Islam in this dunya altogether. Muslims are honestly the most mentally ill, subservient idiots on earth. And when Allah asks why, I'll tell him. Now, this is coming from a Muslim woman. And the reason why it's very, very problematic is कि अगर आप ये कहते हो ना कि if Andrew Tate tries to become Muslim,
यानी चलो आपकी जितनी भी उससे नफरत है, जो भी उसने बातें की होंगी, वो कह रही हैं अगर इफ़ ही एक्सेप्ट्स इस्लाम और परेड्स हिमसेल्फ एज ए मुस्लिम एंड गेट्स एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी, आई एम लीविंग इस्लाम. आपको पता है इसके बारे में उलमा क्या कहते हैं? उलमा कहते हैं कि अगर आप अपने इस्लाम के ऊपर कंडीशन लगाओगे ना, यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट इस्लाम. If you even put a condition on your Islam, if you say कि if this guy does this, I'm leaving Islam, you know what, you've already left Islam. किसको धमकी दे रहे हैं? Who you तो threatening? अल्लाह ताला तुम्हारा मोहताज नहीं है. अल्लाह ताला आपका मोहताज नहीं है कि अल्लाह ताला बैठ के इंतजार कर रहा है, नाउज़ुबिल्लाह हमारा दीन को इतना बेचारा मारे जा रहा है कि जी आपने कोई हमारे पे फेवर किया हुआ है, पूरी मुस्लिम उम्मत पे फेवर किया हुआ है. No, you can't stay. And you're saying that you will tell Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, Allah knows better. In other words, I want to go Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala is saying yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa, कि वो वाला दिन जिस दिन अल्लाह ताला भी होंगे और सफ दर सफ मलाइका खड़े होंगे, ला यतकल्लमून, उस दिन बोल नहीं सकेगा कोई except with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. And you're saying you will tell Allah subhanahu wa ta'ala कि why his religion. I'd rather go to hell, in other words. Subhanallah, man. ये out of emotion है, अल्लाह ताला may Allah guide this sister and may Allah guide. Emotion ही है. Obviously ये इस तरह की बातें कहना ना हमें हज़ार दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि जिस हदीस में भी आता है कि कभी कभार ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाती है जो आपको लगता होगा कि बहुत हल्की है, बट इट इज़ ह्यूज इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एंड मे बी हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपने की हो जो आपके जन्नत में जाने का बायस बन जाए, एंड मे बी एक फिक्रा, कोई एक जुमला, एक कलमा आपने बोला हो जो आपके जहन्नम के जाने का वो बन जाए. तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन सेइंग दैट, एंड स्पेशली पुटिंग दिस आउट देयर ऑन इन द ट्विटर वर्स और व्हाटएवर, जहाँ पे एवरीबडी इज बीइंग एक्सपोज्ड टू दिस. अगर आप मुसलमान हैं और एक बंदा इस्लाम कबूल करे तो आपको तो खुश होना चाहिए, चाहे आपको जितनी मर्जी उससे नफरत है. Not just strange. Isn't it strange? I will quit Islam. वो जैसे अबू जहल नहीं कहता था कि अगर ये तुम्हारा, या अल्लाह अगर तेरा दीन ये सच है तो बजाय इसके ये कहे कि मेरा दिल बदल दे, हम पे पत्थरों की बारिश फरमा. जहालत, ये देखें जहालत. Not just the sisters, bro. Even a lot of, because on social media when he accepted Islam and it was announced, a lot of Muslim commentators, I'm not sure if they say in the dawah, but they all said that I'm not sure about this. They're saying things like that. So not just sisters. The thing is, I spoke to Musa Adnan, who went with Muhammad Hijab. I spoke to him today on WhatsApp, and I said, what do you went there? You went there. They travelled from UK to London and spoke to him. UK to where? Sorry, UK to Dubai. Okay. Where he's staying. And they met him, they sat with him, they spent time with him, and they asked him straight. And Andrew Tate said, "Look, I have done a lot of mistakes. I'm not a scholar, but my Islam is real. I've realized it's the truth. I've studied the Quran." So I think once someone says that, that's it. Your slate is clean as your slate is clean. Who are we to judge? We don't know what's going to happen in the future. We don't know. Wallahu alim. But right now we have to embrace him, accept him, and welcome to the deen. And I was also thinking about this, in case it's some brothers. There's a famous racist Islamophobe in UK. I'm not going to give his name. He said, "Oh, it's a game. It's a chess. Well done, Andrew Tate." He thinks this is like a plot. He's taking everything as a move. Allah, the ayah of the Quran is Allah plans and they plan, and Allah is the best of planners. And the thing is, even if there's a small iota of, okay, maybe it's a fake thing. I don't think it is. I think it's genuine. We all think it's genuine. But even that is, he's in the best company. Now all the du'at, all the scholars are attaching to him, whether, that they're talking to him, they give nasiyah. So, as we say, fake it till you make it. So this is the best place to be. So inshallah, he's in the best place now. I think he's a better Muslim than a lot of Muslims, because he's very uski slate brave. clean He's hai, very jaise ki brave. aapne kaha. Actually जितने भी born Muslims हैं ना, we have taken Islam for granted. Actually, we don't value. Somebody accepted Islam as well recently. We don't value just because of his revision. They go, जो बंदा इस्लाम कबूल करता है ना, out of his own conviction और समझ के और अपनी एक फैसला लेता है, और वो भी ऐसी पोजीशन पे, इस प्रोमिनेंस की पोजीशन पे जिस पे वो है इस वक्त. एक होता है ना अननोन सा बंदा, उसको तो इतना बड़ा मसला नहीं है, हालांकि उनको भी होता है, हमने रहा है, हम देखते हैं वो, उनको फैमिली और बहुत सारे इश्यूज होते हैं अपनी लाइफ में, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज लेते हैं. लेकिन स्पेशली अ पर्सन ऑफ दिस स्टैचर, ये जिस Wasim Riaz, the old Dawah posters, he shared on his WhatsApp, because they have a Dawah store called One True Message Foundation, and they got a message, say, look, I was looking in Islam, but when Tate accepted Islam, I took the Shahada. And this is actually a hadith of the Prophet ﷺ from Sunan Tirmidhi. It's graded Sahih, and the Prophet ﷺ, he said, "Ke love whom you love mildly, perhaps he will become hateful to you someday. Hate whom you hate mildly,
perhaps he will become your beloved someday. Hikmah. So This is ये hikmah. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो ना तो इतनी थोड़ा सा ज़्यादा ना हो हाँ। सकता है कल को वो कुछ और बन जाए, और जब किसी से नफरत भी करते हो ना तो एक्सेसिव नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कल को वो ठीक हो जाए। तो ये जो भी हमने ट्वीट पढ़ा था कि जी अगर ही एक्सेप्ट इस्लाम देन आई एम लीविंग, तो ये इतनी ज़्यादा हेट है कि अगर वो सही भी हो गया तब भी आपने नहीं छोड़ना। तो इसीलिए अपने जज्बात को ना ज़रा काबू में रखें, ज़रा हाथ होला रखें। Even if like the worst person, let's say the worst person on the face of this earth, Netanyahu इस्लाम कबूल कर I was about to say. Netanyahu इस्लाम कबूल कर Alhamdulillah. देखो That's एक a बंदा moment बहुत ही वाइल और विकेट और We will disgusting hate भी him हो for the sake of Allah. वो Yeah. इस्लाम कबूल करता है, वो हमारा इस्लाम में भाई है। वो और बात है कि देखो even the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Yes. he यानी the person who took out the heart, the liver of हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको भी उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे वहशी के बारे में भी उन्होंने कहा कि ठीक है आपने इस्लाम कबूल किया। उन कहते थे बस पर्सनली आई जस्ट वांट टू सी यू, यानी मुझे वो याद आ जाती है। बट ही नेवर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम कमिंग टू हिज गैदरिंग और एनी ऑफ दोस थिंग्स। सो जरा ना कोई भी आप, और देखें ये तो उनका ब्लड रिलेटिव के साथ इतना एक समझ लें कि बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ट्रबलसम और माइंड को ट्रॉमेटाइज heinous, करने वाला yeah, एक्सपीरियंस yeah. हुआ है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि यू स्टिल अ ब्रदर इन इस्लाम। सो आई थिंक हमें अपनी जो प्रायोरिटीज़ है ना उनको ज़रा देखना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी वो अल्लाह के साथ है, अल्लाह के दीन के साथ है। कोई बंदा भी हो, जैसा भी हो, अगर वो इस्लाम की तरफ आता है अल्हम्दुलिल्लाह वी वेलकम दिस पर्सन, चाहे ब्रदर हो या सिस्टर हो, और हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक ऑन दिस जर्नी, वी विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, अल्लाह ताला आपके लिए हिदायत का मामला करे। हो सकता है आज जहाँ हम खड़े हैं आप हमसे बहुत बेहतर हो जाए, हो सकता है कि आप कोई पता नहीं कौन से काम अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो इसलिए जो भी बंदा दीन की तरफ आता है वो हमारा इस्लाम में भाई होता है, और हमें उसको उसी तरह से वेलकम करना चाहिए विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन और बायसेस।